Hello students, welcome to the lecture number 3, which is neutralization and titration curve. Firstly, I will discuss the what is neutralization curve. A plot of a pH against the volume of alkali added in ml is known as neutralization or titration curve. A plot of, in the other word, a plot of pH changes of the solution during the titration and the amount of acid and base used is called titration curve. Neutralization curve is formed when acid and base reaction occur. When acid base titration occur, the formation of the titration curve, and this titration curve is also called the neutralization curve. Titration curve are useful to show the equivalence point or the end point graphically. By the titration curve, we can saw the graphically representation of the end point or the equivalence point. It also help in the choice of the indicator. By the neutralization curve or titration curve, we can choose the indicator according to the titration. So, the curve is formed like this. When burette and conical flask start the reaction, means when titrant which is present in burette, it add in the conical flask, then graph represent like this. A titration curve can be used to determine the pH of the solution at equivalence point is dependent on the strength of the acid and strength of the base used in the titration. Titration curve also determine the pH of the solution and it is depend on the strength of the acid and strength of the base. For a reaction between an acid and a base, a titration is useful for measuring the pH at various points throughout the reaction. A titration curve is a graph of the pH as a function of the amount of titrant, acid or base added. In the titration curve, when the curve is formed, it is based upon the added amount of acid or added amount of base. According to the titration, the curve is generated by a potentiometric titration in which pH is measured after each addition of alkali or acid. The titration curve or the neutralization curve measured by the potentiometric titration, means by the potentiometer, and we can check the pH by the pH meter. So, न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन कर्व क्या होता है? जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, टाइट्रेशन होता है एसिड और बेस का, तो कर्व टाइट्रेशन कर्व फॉर्म होते हैं. ये टाइट्रेशन कर्व आपके न्यूट्रलाइजेशन कर्व कहलाते हैं. ये डिफरेंट टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द एसिड और बेस. ये कर्व कब फॉर्म होता है? जब या तो ब्यूरेट में एसिड हो या फिर बेस हो, जब वो ऐड होता है इन द कॉनिकल फ्लास्क, तो कर्व का फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. pH curves or neutralization curve based upon the 4 type of acid base titration according to the acid and base strong or weak. First is the strong acid strong base, second is weak acid strong alkali means strong base, third is the strong acid weak base, weak acid, fourth is weak acid and weak base. So, there are 4 type of neutralization reaction. They forms different type of neutralization curve or the titration curve.
titration curve plot like this. It base amount of alkali present in the solution and pH. Like this. It start from the 0 when graph plot, it becomes start from 0 and plot like this. This is the general graph of the neutralization curve. Now, it depends on the amount of alkali add in the conical flask or amount of the base. So, first is the titration curve or neutralization curve plot between strong acid and the strong base. For the titration of strong acid and strong base, equivalent point occurs at pH 7, means end point of the reaction is pH 7. Indicator used in this titration: methyl orange, bromothymol blue, methyl red and phenolphthalein. So, firstly I will discuss the strong acid and strong base neutralization curve. Titration of a strong acid with a strong base is the simplest titration, as it involves a strong acid and strong base that completely dissociate in water, thereby resulting in a strong acid strong base neutralization reaction. फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है वो किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, एसिड और बेस की रिएक्शन की वजह से. जब एसिड और बेस में रिएक्शन होगी तो जब आपका जो एसिड या बेस जो ब्यूरेट में प्रेजेंट है उसके ऐड होने पे, मीन्स जो टाइट्रेंट है, ब्यूरेट में टाइट्रेंट होता है, तो टाइट्रेंट के जो जितनी ड्रॉप ऐड होती जाएंगी, कर्व का मूवमेंट उतना ही होता जाएगा और वहीं पर एक इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा. इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है जहां टाइट्रेंट और टाइट्रेंट मींस एनालाइट दोनों के की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के मोल्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे. दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट और इट इंडिकेट द एंड पॉइंट. ये शो करेगा कि यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है. तो और जहाँ रिएक्शन कंप्लीट होगी वहीं जो पीएच होगा वो डिटरमाइन कर देगा कि इस पीएच पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. तो पूरा जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है वो एसिड और बेस की रिएक्शन पे डिपेंड करता है. अब उसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं एसिड और बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है. अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ले रखे हैं तो क्या होगा, जो जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं और जैसे हम मान लीजिए एनालिटिकल आपका जो है वो एसिड है, एनालिटिकल जो कॉनिकल फ्लास्क में एनालाइट है वो एसिड है और बेस है ब्यूरेट में, तो जितना अमाउंट ऑफ बेस हम डालते जाएंगे, पहले तो आपका स्टार्ट होगा ग्राफ 0 से, जैसे पहले वो 0 पे ही होगा क्योंकि एसिड का जो पीएच आएगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा. तो जैसे जैसे उसमें हम एल्कली डालते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ जो होगा वो बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो स्टेबल हो जाएगा. वहाँ पे जो भी कलर होगा, मतलब जो भी एंड पॉइंट होगा वो डिटेक्ट होगा, मतलब जो टाइट्रेंट है और टाइट्रेंट है, एनालाइट है, दोनों के मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएंगी. तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो भी आपका न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनेगा वो आएगा आपका एग्जैक्ट 7 पे, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है तो एक तो वाटर फॉर्म होता है. वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वाटर का पीएच न्यूट्रल होता है, तो यही रिप्रेजेंट कर देता है कि जो पीएच आएगा इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस that will be 7. तो according to the strong acid or strong base neutralization titration, the titration requires the use of the burette to dispense a strong base into a conical flask. Means burette से strong base,
क्योंकि अगर हमने ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, टाइट्रेंट है, जो इंड्यूस कराएंगे हम कॉनिकल फ्लास्क में, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो एनालाइट होगा जिस पर आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो ऐड होगा। तो टाइट्रेशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ ब्यूरेट टू डिस्पेंस अ स्ट्रॉन्ग बेस इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। ब्यूरेट से ऐड कराते जाएंगे टाइट्रेंट को इन द एनालाइट और वाइस वर्सा। अगर आपका ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो फिर एनालाइट आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो जस्ट उसका डिफरेंस होता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंस पॉइंट, और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम इक्विवेलेंस पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड strong base titration is to determine the concentration of the acidic solution by titrating with the basic solution of known concentration और vice versa। मीन्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कराने का पर्पज़ है वो ये होता है कि जो एनालाइट है वो अननोन कॉन्सेंट्रेशन का है, तो उसको हमें डिटरमाइन करना होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बाय द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मीन्स टाइट्रेंट के थ्रू। तो अगर एसिडिक आपका एनालाइट है तो बेस आपका टाइट्रेंट होगा जो कि आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करेगा। और अगर इसी का जस्ट अगर अपोजिट करें तो अगर बेस आपका एनालाइट है तो एसिड फिर वहाँ पर उसको बेस के साथ रिएक्शन करके एंड पॉइंट डिटेक्ट करेगा, मतलब बेस की अननोन कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करेगा। तो ये होता है इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। लेकिन जब दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं तो जो रिएक्शन है वो pH 7 पे आकर ही एंड हो जाती है, एंड पॉइंट 7 pH पे ही डिटेक्ट हो जाता है। एज बोथ द एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग अगर दोनों ही एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट भी स्ट्रॉन्ग होंगे। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों ही हाई होंगे। दे विल बोथ फुली डिसोसिएट, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, विच मीन्स ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एंड बेस और बेस विल कम्प्लीटली सेपरेट इनटू आयन। इसका मतलब है जब वो दोनों डिसोसिएट हो रहे हैं तो जितने मॉलिक्यूल हैं एसिड में और बेस में वो कम्प्लीटली आयनाइज हो रहे हैं। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट equal amounts of H plus and OH, क्योंकि according to the acid base concept, acid produce H plus ion and base produce OH minus ion। तो जो भी H plus और OH minus ion जो भी dissociate हो रहे हैं ions will combine to form water। तो दोनों आयन डिसोसिएट होके क्या करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे इन द सिचुएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, रिजल्टिंग इन अ pH ऑफ 7। क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है उसका pH 7 होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी आपका pH आएगा वो 7 ही होगा, न्यूट्रल होगा। द pH एट द इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर दिस टाइट्रेशन विल ऑलवेज 7। नोट दैट this is true only for the titration of strong acid and strong base. In addition, the anion, negative ion created from the dissociation of the acid combines with the cation, positive, created from the dissociation of the base to create a salt। क्या है इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl और NaOH का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एक तो वाटर फॉर्म हो जाएगा H2O, क्योंकि इसका H आयन प्रोड्यूस होगा और इसका OH आयन प्रोड्यूस होगा, ये कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे। अब जो एसिड से एन आयन प्रोड्यूस हो रहा है और बेस से जो कैट आयन प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, NaCl। तो मीन्स H2O प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। Therefore, the reaction between a strong acid and a strong base will result in water and salt। अब इस strong acid देख लेते हैं, an acid that is completely ionized in aqueous solution। This means when the strong acid is placed in a solution such as water, all of the strong acid will dissociate into its ion, as opposed to a weak acid, the general
इक्वेशन ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस जनरल इक्वेशन के थ्रू हम एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड को दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। H प्लस प्रोड्यूस हुआ और ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। द H रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एंड द A represent the conjugate base and ion of the acid. Now strong base, a base that is completely ionized in aqueous solution. This means when the strong base is placed in a solution such as water, all of the strong base will dissociate into its ion. The general equation XOH, so X plus as a conjugate acid, represent as a conjugate acid, and OH is a hydroxyl ion. So the OH represent hydroxide and the X represent the conjugate acid cation. तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो भी होगा एसिड और बेस का वो इस तरह से होगा, स्टार्ट होगा 0 से और 7 पे आके ये यहाँ पे एंड पॉइंट डिटेक्ट करेगा pH 7. This is the neutralization reaction of the strong acid and the strong base. Now the neutralization curve or neutralization reaction of weak acid and strong base. When weak acid and strong base react with each other, then what happen? For the titration of weak acid and strong base, equivalent point occurs at pH 8 to 10. Indicator use phenolphthalein. सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कौन से टाइट्रेशन में कौन से इंडिकेटर लेने हैं। जैसे कि जो अभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग उसमें मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोल्फथलीन ऐड कर रहे थे। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ओनली फिनोल्फथलीन ही यूज़ कर सकते हैं और जो इसका पीएच डिटरमाइन होगा वो होगा 8 to 10। जो एंड पॉइंट डिटेक्ट होगा वो 8 to 10 पीएच के बीच में ही डिटेक्ट होगा। वाई? सबसे पहला रीज़न तो यही है कि अगर हमारा एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा आएगा क्योंकि एसिड वीक है। और उसके बाद जैसे जैसे एल्कली ऐड कराते जाते हैं इन द एनालाइट तो वैसे ही पीएच बढ़ता जाता है क्योंकि एल्कली की प्रेजेंस में ही वो जो ग्राफ होता है वो आगे मतलब ऊपर जाता रहता है अकॉर्डिंग टू द pH number. The titration of a weak acid with a strong base involves the direct transfer of protons from the weak acid to the hydroxide ion. जो weak acid और strong base का titration होता है इसमें जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द वीक एसिड वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं। द रिएक्शन ऑफ द वीक एसिड एसिटिक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH कैन बी सीन बिलो। इस तरह से देख सकते हैं दिस इज एसिटिक एसिड CH3COH। In the aqueous medium it forms acetate ion and water. In this reaction a burette is used to administer one solution to another. The solution administered from the burette is called the titrant. The solution that the titrant is added to is called the analyte. जो solution हम burette में लेते हैं पहले भी मैं बता चुकी हूँ it is called titrant और जो conical flask में लेते हैं that is analyte। जिसका titration करना होता है वो हम conical flask में लेते हैं that will be analyte और जिससे titrate कर रहे होते हैं वो लेते हैं burette में तो that will be titrant. In a titration of a weak acid with a strong base, the titrant is a strong base. तो weak acid और strong base में titrant जो होगा वो क्या होगा? strong base होगा। means titrant किस में होगा? burette में। is a strong and the analyte is a weak acid. तो acid होगा conical flask में। In order to
fully understand this type of the titration, the reaction titration curve and the type of the titration problems will be introduced. The titration curve is a graph of the volume of titrant, or in our case the volume of a strong base plotted against the pH. There are several characteristics that are seen in all the titration curve of a weak acid with a strong base. बहुत सारी सिचुएशन इसमें पॉइंट्स आएंगे जब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कराते हैं. फर्स्ट कंडीशन होगी द इनिशियल पीएच इज हायर और लेस एक्टिव देन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. जो पीएच की स्टार्टिंग होगी वो जब ऐड करना शुरू करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस को तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और उसके बाद जैसे ही वो एसिडिक मीडियम में आने लगता है फिर धीरे धीरे वो लेस होने लगता है. फिर क्या होता है, फिर बाद में उसमें एनालाइट फिर उसमें टाइट्रेंट ऐड कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिर वो एक मैक्सिमम अमाउंट में चला जाता है. देयर इज अ शार्प इंक्रीजेज इन पीएच एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइट्रेशन. दिस इज बिकॉज ऑफ द एन आयन ऑफ द वीक एसिड बिकम्स अ कॉमन आयन दैट रिड्यूसेस द आयनाइजेशन ऑफ द एसिड. ये क्यों होगा, स्टार्टिंग में पीएच इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि जैसे ही जब एसिड में क्या प्रेजेंट होंगे, एन आयन. जो एन आयन होंगे वो फॉर्म कर लेंगे कॉमन आयन बना लेंगे. जैसे मान लीजिए NaOH है और CH3CO है, एसीटेट आयन है और Na प्लस तो एक यहाँ पे जब Na जो होगा वो CH3CO से कंबाइन करके CH3CONa फॉर्म कर लेगा, और एक आपका एसिड था ही CH3COH. तो दोनों जब डिसोसिएट होंगे तो यहाँ भी CH3CO माइनस आएगा, ये डिसोसिएट होके, और ये भी डिसोसिएट होके CH3CO माइनस आएगा. तो ये और यहाँ पे ये दोनों शो कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट. इसकी वजह से क्या होगा, जो एसिड का आयनाइजेशन है वो रिड्यूस होगा. रिड्यूस होने की वजह से स्टार्टिंग में जो पीएच है वो थोड़ा हाई होगा. फिर आफ्टर द शार्प इंक्रीजेस द बिगिनिंग ऑफ द टाइट्रेशन द कर्व ओनली चेंजेस ग्रेजुअली. This is because the solution is acting as a buffer. This will continue until the base overcomes the buffer capacity. उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो मतलब कर्व जो होगा वो चेंज होने लगेगा. चेंजेस होते ही क्योंकि इसलिए चेंज होगा, जो भी सोल्यूशन होगा वो बफर की तरह एक्ट करने लगेगा. फिर जैसे ही उसमें बेस डालना शुरू करेंगे तो बेस क्या करेगा, जो बफर कैपेसिटी है उसको ओवरकम करके फिर उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे ग्राफ को बढ़ाने लगेगा, मतलब पीएच जो होगा एक्सेस में पहुंच जाएगा. इन द मिडल ऑफ दिस ग्रेजुअली कर्व द हाफ न्यूट्रलाइजेशन अकर्स. एट दिस पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस. सो देयरफॉर द पीएच इज equal to the pK. This point is called half neutralization because half of the acid has been neutralized. अभी इस पॉइंट में क्या होगा, जहाँ जब बफर कैपेसिटी ओवरकम कर लेगा बेस, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट करेगा. लेकिन ये फिर यहाँ क्या होगा, पीएच जो होगा वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा. तो इक्वल आने की वजह से ये पॉइंट जो होगा वो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हाफ एसिड न्यूट्रलाइज होगा. एट द इक्विवेलेंस पॉइंट द पीएच इज ग्रेटर देन 7, और फिर इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा जिसमें पीएच जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा. क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि हम बेस जैसे जैसे ऐड कराते जाएंगे वो पीएच को और बढ़ाता जाएगा. सबसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब एसिडिक कंडीशन थी तो पीएच कॉमन आयन की वजह से, मतलब जो उसमें एसिड में जो एन आयन प्रेजेंट था
वो कॉमन आयन इफेक्ट देने की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस में था, हायर था, फिर धीरे 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 वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम उसमें बेस डालना शुरू करते हैं, बेस डालते ही ऐड कराना शुरू करते हैं, बेस ऐड होते ही पीएच जो होगा धीरे धीरे 7 होना स्टार्ट होगा, 7 से फिर उसके बाद और ऐड कराएंगे बेस, तो वो मतलब पीएच जो होगा वो और 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यही रीज़न होता है कि एसिड जब वीक होता है और बेस जब ज़्यादा होता है तो मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, एसिड वीक होता है और बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होता है। फिर ये एक हम जनरल रिएक्शन देख लेंगे। दिस इज़ सॉल्ट ऑफ द एसिड, या फिर इसे हम कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हैं। दिस इज़ वाटर and when it react with each other they form hydroxyl ion. The starting position of the curve prior to the equivalence point is short. It usually only occurs until a pH around 10. फिर next है strong acid and weak acid neutralization curve. अब यहाँ वही सिचुएशन, यहाँ जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो इसका जो भी इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा वो आएगा पीएच 4 to 6 के बीच में, मींस पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा और मिड होगा 4 to 6, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। इंडिकेटर यूज़, यहाँ इंडिकेटर यूज़ करते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। इन अ वीक बेस strong acid titration, the acid and base will react to form an acidic solution. A conjugate acid will be produced during the titration, which then reacts with water to form hydronium ions. This result is a solution with a pH lower than 7. क्या होता है जब एसिड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन होती है, तो जो कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, क्योंकि वो फॉर्म कर लेता है हाइड्रोनियम आयन, उसकी वजह से पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। इन द केस ऑफ टाइट्रेटिंग द acid into the base for a strong acid weak base titration, the pH of the base will ordinarily start high and drop rapidly with the addition of acid. As the equivalence point is approached, the pH will change more gradually until finally one drop will cause a rapid pH transition through the equivalence point. तो इसमें जस्ट ऑपोजिट है, जैसे ही एसिड आपका ब्यूरेट में होगा इसको जैसे ही ऐड कराना शुरू करेंगे बेस में, बेस होगा आपका एनालाइट, इन कॉनिकल फ्लास्क। जैसे इसको ऐड कराना शुरू करेंगे एसिड को बेस में, तो पीएच जो होगा वो 7 से कम हो जाएगा। तो ग्राफ जो होगा वो ऐसे आएगा 4 to 6 के बीच में। नाउ वीक एसिड एंड वीक बेस न्यूट्रलाइजेशन कर्व। वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं, पहली बात तो वो वाटर में डिसोसिएट होते नहीं है, आयनाइज हो नहीं पाते, तो इसकी वजह से जो इनका ग्राफ होता है वो डिटरमाइन नहीं हो पाता है। ग्राफिकली हम वीक एसिड और वीक बेस को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एंड पॉइंट होता है इनका शार्प नहीं आ पाता है, क्योंकि दोनों ही डिसोसिएट नहीं हो पाते, ना वीक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट हो पाता है, ना ही स्ट्रॉन्ग ना ही वीक बेस। तो in the for the titration of weak acid and weak base, equivalent point not detected. In this case there is no sharp change in the pH value and the nature of the curve. Indicator use phenol red. In particular, the pH at the equivalence point in the titration of a weak base is less than 7 because the titration produces an acid. The identifier of the weak acid or weak base being titrated strongly affects the shape of the titration.
तो ये टाइट्रेशन जो वीक एसिड और वीक बेस का होता है, इसके लिए हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाटर में डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से इनका जो एंड पॉइंट है वो शार्प नहीं होता है। थैंक यू।